ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ ابھی ٹھنڈے پانی کا شاور لے کر نکلا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے تولیے سے اپنے بال خشک کیے اور نئی شرٹ پہننے لگا۔ شرٹ کے بٹن بند کرنے کے بعد وہ آئینے کے آگے آیا۔ ہیئر برش اٹھا کر اس نے اپنے بالوں کو برش کرنے کے بعد خود پر پرفیوم چھڑکا۔ آئینے میں خود پر تنقیدی نگاہ ڈالنے کے بعد اس نے ہر چیز کو پرفیکٹ پایا تھا۔ وہ رسٹ واچ پہن کر ٹیبل سے اپنی سی وی اٹھانے آیا تھا، مگر سی وی کا صفحہ ٹیبل پر موجود نہیں تھا، البتہ وہاں خالی شفاف رنگ کی فائل پڑی ہوئی تھی۔ اس نے سی وی فائل میں نہیں ڈالی تھی۔ وہ سی وی کا پرنٹ نکلوا کر اسے ٹیبل پر رکھ کر عجلت میں شاور لینے چلا گیا تھا۔ کمرے کا پنکھا بھی اے سی کے ساتھ آن تھا۔ اسے لگا شاید وہ صفحہ اڑ کر کہیں گر گیا ہوگا۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے پورا کمرہ چھان مارا، مگر اسے سی وی نہ ملی تو اسے غصہ آنے لگا۔ مام، میرے کمرے میں میرا ایک اہم پیپر پڑا ہوا تھا، دیکھا ہے آپ نے؟ وہ بلند آواز میں بولتا ہوا لاؤنج میں آیا۔ روبینہ بیگم اس وقت ملازمہ کے ساتھ سبزی چھیلنے میں مصروف تھی۔ اس کی بات سن کر لاعلمی کا اظہار کیا۔ ایک ملازم جو لاؤنج کی ڈسٹنگ کر رہا تھا، اون احمد کی بات سن کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ وہ میں نے ابھی آپ کے کمرے کی صفائی کی ہے۔ مجھے وہ کاغذ زمین پر گرا ہوا ملا تھا، مجھے لگا آپ کو نہیں چاہیے، اس لیے کچرے کے ساتھ اسے بھی پھینک دیا۔ وہ ملازم جو اون احمد کی عمر کا ہی تھا، گھبراتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا تھا۔ اسے بہت خوف آ رہا تھا، کیونکہ گھر میں ہر کوئی اون کی غصیلی، ضدی اور تیز مزاج طبیعت کے بارے میں واقفیت رکھتا تھا۔ گھر کے زیادہ تر ملازم اس سے ڈرتے تھے۔ اون کو جب پتا چلا اس کی سی وی کا وہ اہم پیپر اب کچرے کی نظر ہو چکا ہے اور دوبارہ سی وی پرنٹ کروانے میں وقت لگے گا، اور اوپر سے اسے انٹرویو کے لیے دیر بھی ہو رہی تھی، ملازم کی بات سن کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ تم اتنی بڑی حماقت کیسے کر سکتے ہو ساحر؟ تمہارا دماغ ہے یا نہیں؟ اگر کوئی کاغذ زمین پر گرا ملے گا تو تمہیں اسی ٹیبل پر رکھنا چاہیے تھا نا، یا کم از کم مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ یو ایڈیٹ! کیوں میری اجازت کے بغیر مام آپ ان ان پڑھ ملازموں سے میرے روم کی صفائی کرواتی ہیں؟ اگر ایک دو جماعتیں پڑھ لی ہوتی تم نے تو یہ حماقت نہ کرتے۔ اب اپنی شکل گم کرو یہاں سے، اور آئندہ میرے کمرے میں میری اجازت کے بغیر مت جانا۔ وہ شدید غصے میں ساحر کو دیکھتا ہوا چیخنے کے سے انداز میں بول رہا تھا۔ ساحر جو اس حویلی کا ملازم تھا، سر جھٹک کر شرمندگی سے اون کی ڈانٹ سن رہا تھا، اور جب اون نے اسے ان پڑھ ہونے کا طعنہ دیا تو اسے بہت تکلیف ہوئی، اور اس بات پر افسوس بھی ہو رہا تھا کہ جب وہ اون کے کمرے کی صفائی کرنے گیا تھا تو اسے وہ کاغذ ٹیبل کے قریب گرا ہوا ملا تھا۔ اسے لگا یہ غیر ضروری ہے، کیونکہ اگر ضروری ہوتا تو اس کی جگہ ہرگز زمین نہ ہوتی۔ یہی سوچ کر وہ صفائی کر کے کچرا کوڑے دان میں پھینک چکا تھا۔ اسی دوران اون شاور لینے گیا ہوا تھا جب پنکھے کی تیز ہوا سے کاغذ زمین پر جا گرا تھا، اور اسے خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ اپنے مالک کی ڈانٹ سننے کے بعد وہ ڈسٹنگ کا کپڑا ہاتھ میں لیے وہاں سے جانے لگا، مگر احمد صاحب نے اسے روک لیا۔ انہوں نے اخبار طے لگایا اور نزدیک کا چشمہ اتارتے ہوئے اون کو دیکھا۔ اون، یہ کیا طریقہ ہے ملازموں سے بات کرنے کا؟ ابھی سوری کرو اسے۔ تم جانتے ہو میں بدتمیزی برداشت نہیں کرتا، چاہے تم ایک ملازم سے ہی کیوں نہ کرو۔ احمد صاحب کی بات سن کر وہ دانت پیس گیا۔ کیوں ڈیڈ؟ میں اس بے وقوف انسان سے کیوں سوری کروں؟ اگر اس کی اس غلطی کی وجہ سے میرا وہ امپورٹنٹ پیپر چلا گیا، اب دوبارہ اسے پرنٹ کروانا پڑے گا، اور اس چکر میں اچھا خاصا لیٹ ہو جاؤں گا۔ وہ ترکی بترکی جواب دیتا بولا، اون، مجھے تمہارے ایکسکیوزز نہیں سننے، فوراً معذرت کرو، یا پھر اگر تم نے اپنی منمانی کرنی ہے تو اپنا گھر بناؤ اور وہاں جا کر جو مرضی کرو، مگر اس وقت میرے گھر میں صرف میرا حکم چلے گا۔ احمد صاحب سنجیدگی سے اسے دھمکی دیتے ہوئے بولے۔ اون شاکڈ رہ گیا تھا کہ ایک ملازم کی وجہ سے اسے اس کا باپ یہ جتا رہا تھا کہ یہ گھر اس کا نہیں ہے۔ اون، بیٹا ڈیڈ کی بات مان لو، سوری کہنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ روبینہ بیگم باپ بیٹے کو ایک دوسرے سے الجھتا ہوا دیکھ کر
معاملہ ٹھنڈا کرنے کی غرض سے بولی۔ اون کو اس وقت بہت شدید غصہ آ رہا تھا، مگر وہ اپنے باپ سے اپنا تعلق بگاڑنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے صرف ایک لفظی سوری کہہ دیا اور دل میں سوچنے لگا وہ اس ملازم کو بعد میں دیکھ لے گا۔ ساحر خوف سے سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا، کیونکہ جانتا تھا اگر اون اسے اکیلے میں مل گیا تو اس کا برا حال کر دے گا۔ اون کی فطرت سے ہر کوئی واقف تھا۔ وہ غصہ ضبط کرتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ، ایسا بھی کیا اہم تھا اس پیپر میں جو تم اتنا ہائپر ہو رہے ہو؟ کیا آفس کا کوئی دستاویز تھا؟ احمد صاحب اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ اون نے جگ سے پانی بھر کر ایک گلاس میں ڈالا اور ایک ہی سانس میں پانی ختم کیا۔ وہ میری سی وی تھی اور مجھے جاب کے لیے ابھی انٹرویو کے لیے نکلنا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے اور اگر دوبارہ پرنٹ کروانے نکل گیا تو مزید دیر ہو جائے گی، اس لیے بہتر ہے میں اب یہ پلان کینسل ہی کر دوں۔ اچھا خاصا موڈ خراب کر دیا اس ساحر نے۔ میرا نقصان ہوا اور الٹا اپنے اس ملازم کے لیے مجھے سوری کرنے پر فورس کیا۔ وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا انہیں بتانے لگا۔ احمد صاحب کے ماتھے پر بل پڑے۔ ان کا اپنا آفس تھا اور اون بھی اکثر وہاں آتا تھا، پھر اپنا آفس اور بزنس ہوتے ہوئے بھی وہ جاب کرنا جا رہا تھا۔ اس بات کی لاجک احمد صاحب کو سمجھ نہیں آئی، سو اس نے وضاحت کر دی۔ دیکھیں ڈیڈ، آپ آفس میں مجھے جو سب کے سامنے بات بات پر بے عزت کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، نوکری کر کے پیسے جمع کر کے خود مختار ہو کر اپنا بزنس شروع کروں گا۔ اون کی بات سن کر احمد صاحب کو اس پر غصہ ہی آ گیا کہ آخر کب تک ان کا بیٹا انا اور ضد میں لگا رہے گا۔ اس بے وقوفی کی میں تم سے توقع ہرگز نہیں کر رہا تھا۔ تم غلطیاں کرتے ہو اور میں برائے اصلاح تنقید کرتا ہوں، مگر تمہاری انا ہی اتنی ہے کہ تم کسی چیز کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ خیر، تم تو بے وقوف ہو ہی، مگر میں نہیں، اس لیے میں کبھی تمہیں نوکری کی اجازت نہیں دوں گا۔ کل سے واپس میرے آفس آؤ اور وہاں دھیان لگا کر کام کرو۔ احمد صاحب اسے حکم دیتے بولے اور دوبارہ نزدیک کا چشمہ پہن کر اخبار اٹھا لیا۔ روبینہ بیگم بھی اسے سمجھانے لگی تھی۔ اون کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ مٹھیاں بھیجتا ضبط سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ ہرگز اپنے باپ کے ساتھ بزنس میں شریک نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ اپنا ایک الگ مقام بنانا چاہتا تھا۔ جب آفس میں اس کے ڈیڈ اس کی کزنز کو سراہتے اور اس کے کام میں غلطیاں نکالتے تھے تو اسے بہت برا لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نوکری کرنا چاہتا تھا۔ آج اسے انٹرویو کے لیے ای میل بھی آیا تھا، مگر اس ملازم کی غلطی سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ شام ہونے والی تھی اور وہ ہنوز اپنے کمرے میں بے مقصد لیٹا ہوا تھا۔ اسے یہ پریشانی لاحق تھی، اس کے ڈیڈ نے اسے سخت وارننگ دی تھی کہ وہ ان کے آفس کے علاوہ کہیں جاب نہیں کرے گا، مگر وہ کرنا چاہتا تھا۔ اپنے بل بوتے پر وہ ایک کامیاب بزنس مین بننا چاہتا تھا۔ اس کی کزنز اس سے آگے نکل رہے تھے۔ اس کے ڈیڈ کے آفس میں ان کی موجودگی اسے تب اچھی نہیں لگتی تھی جب اس کا باپ ان سب کے سامنے اسے نظر انداز کرتا اور ان کی تعریفیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی وہ سب سے الگ تھلگ ہو کر خاموشی سے محنت کرنا چاہتا تھا۔ اس کی انا اسے یہ کام کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ہانیہ پچھلے 2 گھنٹے سے کچن میں موجود کیک بنا رہی تھی۔ اسے چاکلیٹ کیک بہت پسند تھا اور بیکنگ کرنا بھی بہت اچھا لگتا تھا۔ آج وہ پہلی مرتبہ چاکلیٹ کیک بنا رہی تھی۔ وہ دوپہر میں اپنے تایا اور اون کے مابین ہوئی تلخ کلامی سے ناواقف تھی۔ کیک بن جانے کے بعد اس کے ذہن میں پہلا خیال اون کا آیا کہ وہ سب سے پہلے اسے کیک ٹیسٹ کروائے گی۔ کیک پلیٹ میں رکھ کر وہ احتیاط سے سیڑھیاں اترتی ہوئی گراؤنڈ فلور پر پہنچی۔ او ہو، ماشاء اللہ، یہ کیک لے کر کہاں جا رہی ہو ہانیہ؟ میں بھی کہوں اتنی اچھی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ لگتا ہے تم ہی کیک بنا رہی تھی، اسی لیے خوشبو آ رہی تھی۔ روبینہ بیگم نے ہانیہ کو سیڑھیاں اتر کر آتے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں کیک دیکھ کر بولی، جی تائی، آج پہلی بار چاکلیٹ کیک ٹرائی کر رہی تھی، یہ لیں آپ چکھ لیں۔ وہ پلیٹ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، مگر انہوں نے انکار کر دیا کہ انہیں چاکلیٹ پسند نہیں۔ اون کو بہت پسند ہے چاکلیٹ، اسے دے دو جا کر۔ صبح سے اس کا موڈ بہت خراب ہے، شاید ٹھیک ہو جائے۔ کمرے سے بھی نہیں نکلا وہ تو اپنے۔ تائی کی بات سن کر وہ افسوس سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ او ہو تائی، قسم سے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان صاحب کا تو ہر دن موڈ ایسا ہی ہوتا ہے۔
मैं देख कर आती हूँ अब क्या हुआ उसे। हानिया की बात सुनकर रुबीना बेगम हंसती। हानिया बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी। ऑन का मूड हर वक्त खराब रहता था। गुस्सा और जुनून उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। हानिया उसके कमरे का दरवाज़ा धकेलती अंदर दाखिल हुई। उसने देखा ऑन कमरे में लाइट बुझाए, मध्यम रोशनी किए, बाजू आंखों पर रखकर लेटा हुआ था। हानिया ने कमरे का बड़ा बल्ब जलाया तो रोशनी हर तरफ फैल गई। ऑन, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से चॉकलेट केक बनाकर लाई हूँ। उठ जाओ, तुम सो तो नहीं रहे? वो उसके करीब आकर बैठते हुए बोली। हानिया, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, मुझे तंग मत करना और जाओ यहाँ से। वो उसके साथ भी सख्ती बरत गया। हानिया को उसका चुभता हुआ लहजा बुरा लगा था। वो जिद करने लगी थी कि जब तक वो अपना मूड ठीक करके उसके हाथ का बना हुआ केक नहीं खाएगा वो नहीं जाएगी। प्लीज़ हानिया, इस वक्त मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। वो उठकर बैठता गुस्से में बोला, मगर हानिया बज़िद थी। नहीं ऑन, मैं तुम्हारे कमरे से नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बता देते। आज से पहले इतना सख्त मूड खराब तो कभी नहीं हुआ तुम्हारा। कोई बड़ी बात होगी, इसीलिए मैं सुने बगैर नहीं जाऊंगी। वो हठधर्मी से बोली। ऑन इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहता था। गुस्से में उसने हानिया के हाथ से केक की प्लेट थामी और उसे बाजू से पकड़कर दरवाजे तक लाया। जाओ यहाँ से हानिया, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। उसकी अचानक उसका बाजू छोड़ने पर हानिया के हाथ से प्लेट छूट गई और केक जमीन पर जा गिरा। केक की शक्ल सूरत बिगड़ चुकी थी और वो जमीन पर गिरा अपनी बेकदरी पर रो रहा था। हानिया की आंखों में नमी झलकने लगी। वो इतनी मोहब्बत से उसके लिए केक बनाकर लाई थी, मगर उसने इसके साथ क्या सलूक किया। उसे कमरे से निकाल रहा था और उसकी केक की भी नाकदरी की थी। ठीक है ऑन अहमद, आइंदा मैं कभी तुम्हारे पीछे जिंदगी में नहीं आऊंगी। हमेशा के लिए अल्लाह हाफिज। वो संजीदगी से कहती, गौसीली निगाह उस पर डालती, कमरे से भागकर चली गई। ऑन उसे रोकना चाह रहा था मगर वो नहीं रुकी। ऑन का सारा गुस्सा एक लम्हे में कम हुआ। उसे अब अफसोस हो रहा था कि उसे हानिया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। फर्श पर बिखरे हुए केक को देखकर उसे बुरा लग रहा था, मगर अब क्या हो सकता था। गुस्से में वो नुकसान कर बैठा था। अपने बालों में उंगलियां चलाता वो सोफे पर आकर बैठ गया। अगले ही दिन से ऑन ने डैड के ऑफिस जाना शुरू कर दिया। वो सोच रहा था कुछ वक्त गुजर जाएगा तो वो दोबारा से नौकरी की तलाश शुरू कर देगा। तब तक डैड का गुस्सा भी ठंडा हो चुका होगा। 2 दिन होने वाले थे। हानिया उससे बात नहीं कर रही थी, ना ही उसके मैसेज का जवाब दे रही थी। जब वो रात को घर आकर उससे बात करने का सोचता तो वो सो रही होती थी। सुबह वो जल्दी ऑफिस जाता था, तब भी वो उसे नाश्ते की टेबल पर नजर नहीं आती थी। वो लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। हानिया उसके चचा की बेटी थी। उन दोनों की मंगनी हो चुकी थी। ऑन और हानिया एक दूसरे को पसंद भी करते थे। ऑन हानिया की नाराज होने वाली आदत से बखूबी वाकिफ था कि अगर वो एक बार नाराज हो जाती तो आसानी से मानती नहीं थी। उसे मनाने के लिए 100 जतन करने पड़ते थे, मगर वो नहीं जानता था हानिया और उसकी किस्मत में बहुत जल्द एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिससे वो पूरी तरह नावाकिफ था। उसने हानिया को काफ़ी मैसेजेस किए मगर वो जवाब नहीं दे रही थी। आज इतवार वाले दिन वो खुद उसके कमरे में आ गया। जो ही वो उसके कमरे में आया, हानिया ने उसे देखकर कमरे का दरवाज़ा बंद करना चाहा ताकि वो अंदर दाखिल ना हो सके, मगर वो अपना मजबूत हाथ दरवाजे पर रखकर अंदर दाखिल हो चुका था। क्या मसला है तुम्हारे साथ ऑन? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। वो उसी के लहजे में बोल रही थी जिस तरह ऑन ने उससे बात की थी। उसकी इस नाराज़गी पर अपनी कॉपी करता हुआ देखकर वो बेख्तियार मुस्कुराया। अच्छा सॉरी प्लीज़ हानिया। वो उसके करीब आकर उसे अपने हिसार में लेता हुआ बोला, मगर हानिया ने उसे खुद से दूर धक्का दे दिया। जाओ यहाँ से प्लीज़, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। वो गुस्से में बोल रही थी। अच्छा मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो और मैं तुम्हें अभी मनाने का सोच भी नहीं रहा। हम दोनों कल अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ मैं तुम्हें खूबसूरत सी डायमंड रिंग दूंगा और तुम्हें प्रपोज करने के बाद मनाऊंगा। कल अच्छे से तैयार हो जाना, शाम को तुम्हें ऑफिस से आता हुआ पिक करूंगा। बाय बाय, गुड नाइट। वो उसके तासुरात देखता हुआ बोला और उसे कल का प्लान बताकर वहाँ से चला गया। हानिया का दिल धड़का और वो मुस्कुराई
अपने लब दांतों तले दबाने लगी। ऑन के इस खूबसूरत प्रोग्राम ने उसकी नाराजगी खत्म कर दी थी, मगर वो नहीं जानती थी कि अभी एक और कठिन मरहला आना बाकी था। हानिया तैयार हो रही थी। शाम हो चुकी थी। उसे ऑन के आने का इंतजार था। उसने ब्लैक कलर के टॉप के साथ सुर्ख रंग का ट्राउजर पहना हुआ था। बाल खोलकर गहरी सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी। सुर्ख रंग का दुपट्टा उसने बाएं शाने पर डाल लिया था। उसे ऑन का इंतजार था। थोड़ी ही देर में वो घर आ गया। वो दोनों घर वालों से इजाजत लेते लंच के लिए चले गए। बहुत खूबसूरत लग रही हो हानिया, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी दुल्हन बन गई हो तुम। हानिया गाड़ी में आकर बैठी तो वो उसका चेहरा थोड़ी से थाम कर उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, अभी मैं नाराज हूं, डिनर के बाद फैसला करूंगी मानना है या नहीं मुझे। हानिया नखरे दिखाती हुई उसका हाथ अपनी थोड़ी से हटाती बोली, ओहो, आई प्रॉमिस आज का डिनर तुम्हें हमेशा याद रहेगा और तुम अपनी नाराजगी खत्म भी कर दोगी। वो मुस्कुराता हुआ बोला, मगर वो नहीं जानता था उसके ये अल्फाज सच होने वाले थे और आज की रात वो दोनों भूलने वाले नहीं थे। वो अपनी यूनिवर्सिटी की सहेलियों के साथ रेस्टोरेंट आई हुई थी। खाना खाने के बाद कॉफी पीते हुए उनका मौज मस्ती करने का प्रोग्राम बन गया। हम ट्रुथ एंड डियर गेम खेलते हैं, जैसा राबिया ने कहा। इस गेम में वाकई मजा आएगा और जैसे कि तुम सब जानती हो, मेरे अलावा ये गेम कभी कोई नहीं जीत सकता। उन 5 लड़कियों में बैठी हुई एक लड़की हूर अपने बालों को एक अदा से झटकती हुई बोली थी। उसका ये कॉन्फिडेंस देखकर उसकी बाकी सहेलियां उसे गौर से देखने लगी। अच्छा, तो बात यह है हूर, अब मैं तुम्हें तुम्हारी बारी पर ऐसा चैलेंज दूंगी कि तुम हार जाओगी। राबिया की बात सुनकर हूर ने उसका चैलेंज कबूल कर लिया। उन्होंने कोक की खाली बोतल टेबल के दरमियान में रखकर घुमाई। उसकी 2 सहेलियां हार चुकी थीं। तीसरी बार पर बोतल का ढक्कन हूर की तरफ आया। हूर ने आंखें मीच कर खोली। उसने डियर सिलेक्ट किया था। मैं तुम्हें डियर दूंगी, तुम ऐसा करो, वो देखो उस टेबल पर जो लड़का लड़की डेट मार रहे हैं, उनकी डेट खराब करो। तुम्हें जाकर उस हैंडसम लड़के की बीवी बनने का ड्रामा करना है। अगर वो लड़की उसे छोड़कर चली गई तो तुम ये डियर जीत जाओगी। राबिया का डियर सुनकर हूर की आंखें हैरत से फैल गई। उसने पीछे मुड़कर उस टेबल पर बैठे उन लड़का लड़की को देखा था। तुम्हें कैसे पता कि वो डेट मार रहे हैं? हो सकता है मैरिड हों। ऐसे तो इस डियर का कोई फायदा नहीं होगा और मैं हार जाऊंगी। कोई और डियर दो। हूर को राबिया का आइडिया पसंद नहीं आया था, लेकिन राबिया हर सूरत उसे यही डियर पूरा करवाना चाहती थी। अब बहाने मत बनाओ हूर, बल्कि रुको, मैं तुम्हारी खातिर उस लड़के की इंफॉर्मेशन लेकर आती हूँ चुपके से। राबिया पक्का इरादा करती हुई वहां से चली गई और उस टेबल के करीब जाकर फोन इस्तेमाल करने में मगन हो गई, मगर हकीकत में उसके कान इस टेबल की तरफ ही लगे हुए थे जहां ऑन और हानिया बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद राबिया वापस अपने टेबल पर आई। उसने हूर को ऑन का नाम बताया और ये भी बताया कि वो उस लड़की हानिया से शादी की बात कर रहा था। तो हूर, मैंने तुम्हें इंफॉर्मेशन ला दी है। अब तो तुम्हें पक्का इस डियर में पास होना चाहिए। अगर तुम पास हो गई तो हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। चलो अब जल्दी जाओ। राबिया उसे डियर समझाते बोली कि उस लड़की को वाकई ये यकीन दिलाना था कि वो ऑन की बीवी है, और अगर ये सुनकर वो लड़की वहां से ऑन से नाराज होकर चली गई तो हूर ये डियर जीत जाएगी। पहली 2 बारियों पर उसकी सहेलियां हार चुकी थीं, मगर इस वाले डियर पर हूर जीतना चाहती थी। इसीलिए हिम्मत करती वो उस टेबल की तरफ बढ़ने लगी। उसने गहरी सांस खारिज करके अपने बाल दुरुस्त किए और टेबल के करीब आकर ऑन को देखा। अरे ऑन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कब से मैं और बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। आप घर क्यों नहीं आ रहे? वो ऑन के करीब कुर्सी खींचकर बैठ गई। ऑन समेत हानिया उसकी बात सुनकर हैरत ज़दा हो गए। ये कौन है ऑन अहमद? हानिया ने नागवारी से उस लड़की को देखते पूछा जो अब ऑन के करीब कुर्सी खींचकर बैठी हुई थी। बीवी हूं मैं इनकी, 4 साल पहले शादी की है इन्होंने और हमारे बच्चे भी हैं। लेकिन वह भी हानिया को बता रही थी जब ऑन सदमे से उस लड़की को देखने लगा जिसे वो जानता तक नहीं था और वो उसकी बीवी होने का दावा कर रही थी। व्हाट? शट अप। तुम हो कौन? मैं नहीं जानता इस लड़की को।
क्या झूठा इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पर? बल्कि मुझे लगता है ये मांगने का नया तरीका इजाद हुआ है। पैसे लो और जाओ यहां से। वो हानिया को सफाई देता उस लड़की को भिखारन समझकर अपने वॉलेट से पैसे निकालकर टेबल पर रख चुका था। नहीं हानिया, मेरी बात सुनो। मैं जानती हूं ये तुम्हें भी शादी का लारा लगा रहे हैं। ये कभी तुमसे शादी नहीं करेंगे क्योंकि ये मुझसे शादी कर चुके हैं। हूर हानिया से मुखातिब हुई और हानिया अपने नाम पर चौंक गई कि वो लड़की ओन का नाम भी जानती थी और उसकी बीवी होने का दावा कर रही थी और हानिया का नाम भी जानती थी। दूर खड़ी हूर की सहेलियां हूर को थम्स अप का साइन दे रही थी। ओन, मुझे सच सच बताओ, पिछले साल से मैं तुम्हें शादी का कहती रही लेकिन तुम टालते रहे हो। ये लड़की तुम्हारी बीवी है ना? बता दो सच आज, क्योंकि सच एक दिन सामने जरूर आ जाता है। हानिया की आंखों से आंसू टपकने लगे। नहीं हानिया, मेरी बात सुनो। ये लड़की पागल है, बकवास कर रही है। बोलो जल्दी, सच बताओ, तुम जो भी हो, वरना तुम्हें यहीं खड़े खड़े दफन कर दूंगा। वो हूर की तरफ गुस्से से देखकर गुर्राया। हूर एकदम परेशान हो गई, मगर वो हार नहीं सकती थी। उसने जिंदगी में हारना नहीं सीखा था, इसलिए अब वो जीते बगैर पीछे नहीं हट सकती थी। सच यही है हानिया, ओन और मैं यूनिवर्सिटी में मिले थे। वही हमें मोहब्बत हुई और चोरी छुपे हमने शादी की। मगर ओन मुझसे नाराज है, इसीलिए बच्चों को और मुझे छोड़कर चले गए। अभी रेस्टोरेंट में इनको देखकर मैं इनको लेने आई हूं। वो लड़की बदस्तूर हठ धर्मी से बोल रही थी और अब ओन का दिल चाह रहा था इस छोटी लड़की को मार डाले। उसने कभी इस लड़की की शक्ल भी नहीं देखी थी। शादी और फिर बच्चे होना तो दूर की बात थी। हानिया यूनिवर्सिटी का सुनकर चौंक गई। वो उठकर वहां से नाराज होकर आंसू साफ करती जा चुकी थी और ओन उसे मनाने पीछे उसके भागा। मेरी बात सुनो हानिया, अल्लाह की कसम वो लड़की झूठ बोल रही है, फंसा रही है मुझे। मैं उसे नहीं जानता। वो हानिया को बाजू से थाम कर अपनी जानिब खींचता हुआ बोला, मगर वो उसे अपना हाथ छुड़वा चुकी थी। मुझे नफरत हो रही है तुमसे ओन। तुम हमेशा से ऐसे ही हो। यूनिवर्सिटी में भी तुम्हारी कितनी लड़कियों से दोस्ती थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपनी ही दोस्तों में से किसी से शादी कर लोगे और मुझे इतने साल बेवकूफ़ बनाते रहोगे। अब दोबारा मेरे पीछे मत आना। मैं सबको तुम्हारे धोखे के बारे में बताऊंगी। वो फूट फूट कर रोते हुए बोली और सड़क पर रिक्शा रोक रही थी ताकि घर जा सके। उसके पीछे ओन भी गाड़ी में वहां से निकल चुका था। हूर के जीत जाने पर उसकी सहेलियां तालियां बजाते हुए उसके करीब आई। वाह हूर वाह, तुमने तो वाकई आज कमाल कर दिया। इतनी अच्छी अदाकारी की है, तुम्हें तो ड्रामों में आना चाहिए। उसकी सहेलियां उसकी तारीफ कर रही थी, मगर वो नहीं जानती थी हूर को ये मजाक बहुत भारी पड़ने वाला था। उसकी जिंदगी से खुशियां खत्म होने वाली थी। वो रोते हुए घर आई। घर आते ही उसने खुद को कमरे में लॉक कर लिया। सब उसके इस रवैये पर परेशान हो रहे थे। वो ना कुछ बोल रही थी, ना दरवाज़ा खोल रही थी। जब ओन आया तो उन्होंने उस पर सवालात की बौछार कर दी और वो अपना सर थाम कर रह गया कि उन्हें कैसे सच बताए। फिर जब उसने सबको सच बताया तो सब शॉक्ड रह गए। मैं कसम खाता हूं मैं नहीं जानता वो लड़की कौन है। मैंने उससे शादी नहीं की, बल्कि हानिया के अलावा किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखा। मगर हानिया मुझे गलत समझ रही है। वो अपनी सफाइयां दे रहा था। घर वाले उसकी बात पर यकीन कर चुके थे, मगर हानिया हनूज सदमे की कैफियत में थी। ना कुछ बोल रही थी, ना किसी से बात कर रही थी। घर वाले उसे समझा रहे थे, मगर उसे यकीन नहीं आ रहा था। ओन खुद भी उसे कई बार वजाहत दे चुका था। ओन, अगर तुम वाकई सच्चे हो तो उस लड़की को मेरे सामने लेकर आओ। मैं उसी से सवाल करना चाहती हूँ। मुझे बेवकूफ़ मत समझना। कोई लड़की तुम्हारे बारे में जानती है, मेरा नाम तक जानती है, खुद को तुम्हारी यूनिवर्सिटी फेलो बता रही है। वो झूठ बोलकर ये सब कहानी क्यों घड़ेगी? ये मेरा आखिरी फैसला है। जब तक तुम्हारी सच्चाई साबित नहीं हो जाती, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। हानिया संजीदगी से कहती अपने कमरे में जा चुकी थी और वो सर थाम गया था कि आखिर कैसे उसे अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाएगा। हानिया गुस्से से अपने कमरे में आकर बैठ गई। वो ओन के साथ ही यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। वहाँ भी ओन के आगे पीछे लड़कियाँ घूमती थीं
और वो उन लड़कियों से दोस्ती कर लेता था। इसके बारे में यूनिवर्सिटी में ये बात भी मशहूर थी कि उसकी एक गर्ल फ्रेंड भी है। उसने यूनिवर्सिटी में इस बात को कभी संजीदा नहीं लिया था, मगर अब वो उस लड़की की बातें सुनकर सोचने पर मजबूर हो गई कि कहीं वो वही लड़की तो नहीं। शायद वही यूनिवर्सिटी में ऑन की गर्ल फ्रेंड थी जिससे फिर उसने खुफिया शादी कर ली थी। वो न जाने क्या कुछ सोच रही थी। 7 साल पहले हानिया की ऑन से मंगनी हुई थी, मगर वो जल्दी शादी नहीं करना चाहता था। जब भी वो इसे शादी का कहती, वो अपने बिजनेस की बात शुरू कर देता कि उसे अभी बिजनेस की दुनिया में अपना नाम बनाना है। मगर अब उसे इस बात का खदशा हो रहा था कि शायद इस लड़की से वो वाकई शादी कर चुका है और इसीलिए वो हानिया को शादी के मामले में हर बार टाल रहा था। ये सब सोचते ही उसे लगा उसका सांस रुक रहा है। वो घुटनों में सर देकर रोने लगी। वो ऑन से सच्ची मोहब्बत करती थी, मगर सोच भी नहीं सकती थी ऑन उसके साथ धोखा करेगा। जहां वो ऑन के बारे में गलत सोच रही थी, वहीं ऑन ये समझ नहीं पा रहा था कि कैसे उस लड़की तक पहुंचे जिसकी वजह से उसके और हानिया के दरमियान गलत फहमी पैदा हो गई थी। आज उसकी माहियों थी। इसी हफ्ते उसकी शादी थी। वो अपना ब्राइडल ड्रेस आईने के आगे खड़ी होकर देख रही थी। वो बहुत खुश थी कि उसकी शादी होने जा रही थी। अपनी शादी के हवाले से उसने बहुत से ख्वाब देखे थे, मगर वो नहीं जानती थी उसके ये ख्वाब धरे के धरे रह जाने वाले थे। आज 1 महीना होने वाला था। वो अपना सर थामे बैठा था। ऑफिस में उसे चैन नसीब नहीं हो रहा था। आज नाश्ते की टेबल पर सबकी मौजूदगी में हानिया ने अपनी मंगनी की अंगूठी उतार कर ऑन के करीब रख दी थी। 1 माह होने वाला है, लेकिन तुम अब तक अपनी सच्चाई साबित नहीं कर सके ऑन। इससे बड़ा कोई सबूत नहीं कि तुम वाकई एक धोखेबाज इंसान हो। ये पकड़ो अपनी अंगूठी। मैं ये मंगनी तोड़ रही हूं। आज के बाद हमारे रास्ते अलग हैं। वो अटल फैसला कर चुकी थी। उसके इस फैसले पर घर के सब लोग हैरान रह गए। बेटा ऐसा तो मत करो। न जाने कौन थी वो लड़की, पता नहीं उसे किसने भेजा था। किसी दुश्मन की साजिश भी तो हो सकती है ये, और तुम वाकई उस साजिश में आ रही हो। अहमद साहब उसे समझाते हुए बोले, मगर वो खामोशी से अपना नाश्ता लेकर कमरे में चली गई। ऑन का दिल सही मायनों में लरस कर रह गया। इस घर में हानिया की जिद से भी हर कोई अच्छी तरह वाकिफ था। वो एक बार नाराज हो जाती तो उसे मनाना बेहद मुश्किल हो जाता था। उसका सर दर्द करने लगा, आंखों में खून उतर आया। वो सोच चुका था कि अब उस अनजान लड़की को हर हालत में तलाश करके रहेगा। वो उसका बहुत बुरा अंजाम करेगा। उसने कुछ सोचकर रेस्टोरेंट के मालिक को फ़ोन किया। अपना हवाला देकर उसने उस रात की तारीख और वक्त बताकर अपने टेबल की सीसीटीवी फुटेज मांगी, जिसमें उस लड़की का चेहरा भी नजर आ रहा हो। उसे यही तरीका समझ आ रहा था कि अगर वाकई सीसीटीवी फुटेज के जरिए उस लड़की की तस्वीर हासिल हो गई तो उसे ढूंढना आसान हो जाएगा। 2 घंटे बाद उसके व्हाट्सएप नंबर पर कुछ तस्वीरें मौसूल हुईं। एक फुटेज में उस लड़की का चेहरा वाज़ेह नजर आ रहा था। उनको थोड़ा हौसला मिला कि अब उसकी सच्चाई बहुत जल्द हानिया के सामने आ जाएगी। उसने फ़ोन करके अपने ख़ास मुलाजिम को बुलाया। यस सर, उसका मुलाजिम कमरे में आते हुए बोला। एक काम कर सकते हो मेरे लिए? एक लड़की को ढूंढना है। उसकी सारी मालूमात चाहिए मुझे। ये एक तस्वीर है उसकी। ऑन ने अपने प्रिंटर से उस लड़की की तस्वीर निकालकर अपने मुलाजिम शाहिद को दे दी, जो उससे उम्र में काफ़ी था। तस्वीर देखकर वो चौंका। अरे सर, ये तो हमारे ऑफिस के गार्ड सफ्तर साहब की बेटी है, हूर। शाहिद की बात सुनकर वो चौंक गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था। क्या तुम यकीन से कह सकते हो? ध्यान से देखो, वो जोर देते हुए बोला। सर, मैं 100% यकीन से कह रहा हूं। सफ्तर साहब मेरे मोहल्ले में ही रहते हैं और ये उन्हीं की बेटी है, हूर। इसकी कल शादी है। शादी की बात सुनकर वो ठुठक कर रह गया और उसने सुर्ख होती आंखों से तेजी से एक फैसला किया। उसका फिशारे खून बुलंद हो रहा था। वो जल्द अज जल्द इस लड़की को सबक सिखाना चाहता था। मुझे ये लड़की कल रात को मेरे फार्म हाउस में चाहिए। इसकी शादी नहीं होनी चाहिए। खुफिया तौर पर इसे उठाओ और मेरे फार्म हाउस में ले आओ। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। इसने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की, अब आबाद उसे भी नहीं होने दूंगा मैं।
آج اس کی وجہ سے اس کی منگنی ٹوٹ گئی تھی اور وہ خود شادی کر رہی تھی۔ غصے کی شدت سے ضبط کرتا وہ اس لڑکی کا برا حال کرنے والا تھا۔ وہ شاہد کو سب تفصیل سے سمجھا رہا تھا۔ اب اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ آج اتوار کا دن تھا اور اس کی رات کو بارات تھی۔ وہ اپنا برائڈل ڈریس اور جیولری لے کر گاڑی میں بیٹھی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ سیلون پہنچ گئی۔ تیار ہوتے ہوئے اسے شام ہو گئی۔ اس کی سہیلیاں ابھی تیار ہو رہی تھیں جب اسے پیغام ملا کہ ڈرائیور حور کو لینے آ گیا ہے۔ تم لوگ تیار ہو کر آ جانا، مجھے بار بار امی ابو کی کالز آ رہی ہیں۔ حور اپنا لہنگا سنبھالتی سیلون سے نکل کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ یہ ڈرائیور اس کے لیے اجنبی تھا، مگر اس کا نام لے رہا تھا، اسی لیے اسے لگا کہ اسے اس کے گھر والوں نے بھیجا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی یہ ڈرائیور اصل میں اون کا ملازم شاہد تھا۔ اچانک اس نے کلورو فارم سے اسے بے ہوش کر دیا اور پھر گاڑی کا رخ فارم ہاؤس کی طرف کر دیا۔ اون اپنے کمرے میں موجود تھا جب اس کے نمبر پر شاہد کی کال آئی۔ ہانیہ جو اون سے آخری مرتبہ بات کرنے آ رہی تھی دروازے پر ہی رک گئی جب اس سے سنا وہ کسی سے کال پر بات کر رہا ہے۔ وہ لڑکی فارم ہاؤس سے بھاگنی نہیں چاہیے شاہد، میں کچھ ہی دیر میں فارم ہاؤس پہنچ رہا ہوں، تب تک اس لڑکی پر کڑی نظر رکھنا۔ اون کی بات سن کر ہانیہ کو شاک لگا کہ اب کون سی لڑکی تھی جو اون کے فارم ہاؤس پر موجود تھی، اور وہ بھی فارم ہاؤس جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے کمرے سے ہٹ گئی۔ سب لوگ ڈنر کی ٹیبل پر جمع ہو رہے تھے، مگر وہ ضروری کام کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے کسی کو یہ تک نہیں بتایا تھا کہ وہ فارم ہاؤس جا رہا ہے۔ مجھے بھی اون کے پیچھے فارم ہاؤس جانا چاہیے، شاید مجھے کچھ حقیقت پتہ چل جائے، کہیں وہ لڑکی وہی تو نہیں ہے۔ ہانیہ کو ایک نیا خدشہ لاحق ہوا۔ اجلت میں ڈنر کرنے کے بعد وہ گھر والوں کے سامنے اپنی سہیلی کے گھر جانے کا بہانہ بناتی فارم ہاؤس کے لیے نکل گئی۔ وہ عروسی لباس میں ملبوس فارم ہاؤس کے لاؤنج میں صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو خود کو اجنبی جگہ پا کر اس کے ہوش واقعی اڑ گئے۔ اس نے بھاری ہوتے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے یاد آیا کہ وہ گاڑی میں بیٹھی تھی جب اچانک ڈرائیور نے کوئی رومال اس کے ناک پر شدت سے رکھ دیا اور وہ ہاتھ پیر چلاتی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کی روح لرز گئی کہ وہ اغوا ہو چکی ہے۔ اسی اثنا میں وہ لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس لڑکی کو دلہن بنے دیکھ کر اس کا فشار خون بلند ہوا۔ آپ نے مجھے اغوا کیا ہے؟ اس نے سامنے اون کو دیکھا تو اسے دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ وہ اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی کہ یہ وہی شخص تھا جو ریسٹورینٹ میں موجود تھا، اور اپنی سہیلیوں سے ڈیر ملنے پر وہ اسی لڑکے کی بیوی بننے کی اداکاری کر رہی تھی۔ ہاں، میں نے تمہیں اغوا کیا ہے، کیونکہ بقول تمہارے تم میری بیوی ہو۔ پھر بتاؤ بھلا بیوی بننے کے بعد دوسرا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے جب مجھے تمہارے نکاح کی خبر ملی تو فوری میں نے تمہیں اغوا کروا کر اپنے پاس بلا لیا۔ مائی وائف، تم میری بیوی ہونا اور تمہیں اپنے شوہر کے پاس ہونا چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے پراسرار لہجے میں کہتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اسے اپنے سے 1 فٹ دور کھڑے دیکھ کر اور اس کی باتیں سن کر حور دنگ رہ گئی۔ اس دن وہ بہت شیر بن رہی تھی، مگر آج اون کے سامنے بھیگی بلی محسوس کر رہی تھی۔ دیکھیں، آئی ایم سوری، اس دن صرف میں نے اپنی سہیلیوں کے کہنے پر وہ سب کہا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے ڈیئر دیا تھا۔ میں صرف جیتنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے وہ سب کیا۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، آپ مجھے واپس چھوڑ آئیں۔ میری کچھ دیر میں بارات ہے، سب لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ حور اسے وضاحت دیتی ہوئی انگلیاں چٹکتے ہوئے بولی، اوہ اچھا، یعنی تم نے ایک اسٹوپڈ سی گیم کی وجہ سے میری زندگی کے ساتھ اتنا بڑا گیم کھیلا۔ جانتی بھی ہو تم کہ تمہاری اس بے وقوفی کی وجہ سے میرا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن تمہیں معافی تو ہرگز نہیں ملے گی۔ تمہاری وجہ سے میری منگیتر مجھ سے نفرت کرتی ہے، مجھے دھوکے باز سمجھنے لگی ہے۔ اس نے مجھ سے منگنی توڑ دی، مگر اب بسنے تو میں تمہیں بھی نہیں دوں گا۔ آج تم واپس نہیں جا سکو گی، تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گا میں۔ اب تم میرے جنون سے اچھی طرح واقف ہو جاؤ گی۔ وہ غصے سے چیختے ہوئے بولا۔ حور کو اسے خوف آ رہا تھا، وہ ڈر کر رونے لگی، اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ پلیز
मुझे माफ कर दें, मुझे जाने दें। अभी मैं वादा करती हूँ आपकी मंगेतर के सामने पूरा सच बताऊंगी, उससे भी माफी मांगूंगी। वो उसके आगे हाथ जोड़ रही थी, मगर इसके रोने धोने और माफिया मांगने से हरगिज ऑन का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। वो लोगों को माफ करने का आदी नहीं था, और यहाँ तो इस लड़की ने उसका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था, उसे हानिया की नजरों से गिरा दिया था। वो गुस्से से उसका बाजू दबोचता हुआ उसे अपने साथ घसीटता हुआ बेसमेंट में लाया। उसे एक कमरे में धक्का देकर उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। हूर तड़प कर रह गई, खौफ से उसकी टांगें कांप रही थी। उसने रोते रोते दरवाजा बजाना शुरू किया, मगर ऑन सुनी अनसुनी करता हुआ वहां से चला गया था। हूर रोते हुए जमीन पर बैठती चली गई। उसे बहुत खौफ आ रहा था। उस दिन वो अपनी सहेलियों के साथ उन्हें अपनी शादी की ट्रीट देने गई थी, मगर इसी दौरान उन्होंने ट्रुथ एंड डेयर गेम खेलने का प्रोग्राम बना लिया। उसे चैलेंजिंग काम बहुत पसंद थे, इसलिए उसने ये चैलेंज कबूल कर लिया था और ऑन की बीवी बनने की खूब अदाकारी की थी। जब उसने देखा कि ऑन और वो लड़की वहां से जा चुके हैं, तो वो भी इस मामले को भूल चुकी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था उसे इस डियर का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उसका घर पहुंचना बहुत ज़रूरी था। उसके ख़ानदान वाले तंग जहन लोग थे। वो जानती थी उसके घर ना पहुंचने पर उसके बारे में गलत बातें फैलने लगेंगी। उसकी माँ दिल की मरीज़ा थी। ये सोच सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था कि उसके वक्त पर ना पहुंचने पर उसके घर वालों समेत उसकी ज़ात पर कितना कीचड़ उछलेगा। वो लोग बदनाम होकर रह जाएंगे। उसे अपना किया हुआ एक मजाक इतना भारी पड़ेगा, अगर उसे पता होता तो वो ये मजाक कभी भी ना करती। वो दरवाज़ा बजा बजा कर थक गई थी, मगर उसके लिए दरवाज़ा खोलने वाला कोई नहीं था। उसकी आवाज़ें बेसमेंट की ही दीवारों से टकरा रही थी। अब ऑन सीढ़ियाँ चढ़कर ग्राउंड फ्लोर पर आ चुका था, जहां अब उसकी आवाज़ें नहीं आ रही थी। हानिया ट्रैफिक में फंस गई थी, इसीलिए उसे फार्म हाउस पहुंचने में देर हो चुकी थी। जब वो फार्म हाउस में आई तो ऑन उसे देखकर हैरत ज़दा हुआ। तुम यहाँ कैसे? वो खड़ा होता हुआ उसे देखकर पूछने लगा। हानिया मतलाशी निगाहों से आसपास उस लड़की को तलाश करने की कोशिश कर रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? हानिया ने उल्टा उसी से सवाल किया। अपनी सच्चाई साबित करने, उसने संजीदगी से जवाब दिया। मैं भी सच्चाई का पता लगाने आई हूं, गहरी सांस खारिज करते हुए हानिया ने कहा। उसे अभी भी डर था कि कहीं उसका खदशा सच ना हो जाए। कल तक का इंतजार करो हानिया, सब सच खुद ही सामने आ जाएगा। चलो घर चले, वो संजीदगी से बोला और लाउंज की लाइट्स ऑफ कर दी। हानिया खामोश हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऑन क्या चाह रहा था। पूरा फार्म हाउस खाली था, कोई लड़की भी नहीं थी। फिर वो कॉल पर किस लड़की की बात कर रहा था? वो ऑन से पूछना चाहती थी। जैसे ही उसने उसे पूछने के लिए लब खोले, ऑन फौरी उसे टोक गया। मुझे अभी कोई बात नहीं करनी हानिया, कल तक मैं सिर्फ चुप रहूंगा। अब मुझे सिर्फ उस वक्त का इंतजार है जब सच तुम्हारे सामने आएगा। वो बगैर उसकी तरफ नजर डाले बोला। हानिया लब भेंट चुकी थी। ऑन चाहता तो उसे सच खुद बता सकता था, मगर वो जानता था हानिया यकीन नहीं करेगी, जैसे पहले नहीं किया था। इसलिए वो चाहता था कल खुद हानिया को हूर सच बताए। उसने हूर को उसकी संगीन गलती की सजा भी देनी थी। वो चाहता था उसकी शादी टूट जाए, इसीलिए उसे फार्म हाउस में बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ शाहिद के जरिए उसने हूर के घर पर नजर भी रखवाई हुई थी। वक्त काफी गुजर चुका था। हानिया घर नहीं पहुंची। हर जगह उसकी घर ना आने की खबरें फैल गई थी। लोग बातें बनाने लगे थे कि हानिया जरूर घर से भाग गई होगी। बारात भी आ चुकी थी और लोगों में चेमगोइयां हो रही थी। फरहत बेगम और सफदर साहब सख्त परेशान हो गए थे। निकाह ख्वां भी कब से दुल्हन के आने के इंतजार में थे। हर तरफ शोर उठ रहा था और उन लोगों की इज्जत पर बात आ गई थी। अंकल, जब हूर तैयार हो गई थी तो वो अपनी मर्जी से ये कहकर चली गई कि उसे लेने आ गए हैं तो वो जा रही है। हूर की सहेलियों ने बताया। सब लोगों को लग रहा था कि हूर अपनी मर्जी से गई है।
अब क्या होगा बाबा? इरम, जो हूर की छोटी बहन थी, अपने माँ बाप को परेशानी की हालत में देखकर पूछ रही थी। सफदर साहब गौर से अपनी बेटी को देखने लगे। इरम, हमारी इज्जत का सवाल है। हूर तो हमारे ऊपर बदनामी का दाग डालकर चली गई, लेकिन तुम हमारी इज्जत रख लो। तुम शायान से शादी कर लो। अगर बारात वापस चली गई तो दोबारा हमारे दरवाजे पर कोई नहीं आएगा। तुम भी पिस जाओगी हूर की वजह से। सफदर साहब की बात सुनकर इरम शॉक्ड रह गई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जो सूरत हाल थी उसके आगे वो खामोशी से सर झुका गई। थोड़ी देर में ही उसका शायान से निकाह शुरू हुआ और हूर की जगह वो रुखसत होकर शायान के घर चली गई। शाहिद ने अगले दिन ओन को यह खबर दी तो उसके कलेजे में ठंडक सी पड़ गई। उसने शाहिद को हुक्म दिया कि वो हूर को लेकर मेंशन में आ जाए ताकि वो सबके सामने सच बता दे। थोड़ी देर में शाहिद आ चुका था। किसी लड़की को दुल्हन के लिबास में आता देखकर सब हैरान हुए। हानिया भी शॉक थी। हूर ने हाथ जोड़ते हुए हानिया से माफ़ी मांगी और उसे सब कुछ सच बता दिया कि वो ओन को नहीं जानती और ना ही उसकी बीवी है। उसने सिर्फ अपनी सहेलियों के डियर देने पर यह सब किया था। हानिया शॉक्ड रह गई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे इस मजाक से मैं क्या कुछ सोच बैठी थी? कितना बड़ा फैसला कर लिया था। शर्म आनी चाहिए किसी के साथ ऐसा मजाक करते हुए। हानिया शदीद बरहमी का इजहार कर रही थी। हूर शर्मिंदा थी क्योंकि उसे सबक मिल चुका था कि किसी के साथ ऐसा मजाक भयानक नताइज ला सकता है। जाओ शाहिद, इसे इसके घर छोड़ाओ। ओन के हुक्म पर वो उसे वहां से लेकर चला गया। हानिया शर्मिंदगी से सर झुका गई थी। बोलो हानिया, क्या अब भी तुम्हें मुझ पर शक है? अब भी तुम चाहती हो मैं ये मंगनी तोड़ दूं? वो उसके करीब आकर सवाल कर रहा था। हानिया बेसाख्ता रोने लगी। सॉरी ओन, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम पर एतबार करना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई और मुझे अफसोस हो रहा है। शुक्र है मैंने जल्दबाजी में कोई इंतहाई कदम नहीं उठा दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई प्रॉमिस आइंदा मैं तुम पर एतबार करूंगी। हानिया को रोता देखकर वो फौरी नरम हो गया और आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथ में थाम कर जेब से वो मंगनी की अंगूठी निकालकर पहना दी जो उस दिन हानिया उसे वापस देकर चली गई थी। हानिया ने तशक्कुर से उसे देखा। अब शक करने की नौबत नहीं आएगी क्योंकि मैं इसी माह शादी करना चाहता हूं तुमसे। वो नरमी से बोला और हानिया खुश हो गई। जब हूर घर पहुंची तो सब उसे गुस्सीली नजरों से देख रहे थे। जब हूर को पता चला उसकी जगह उसकी बहन रुखसत होकर चली गई है तो उसे सही मायनों में झटका लगा। अब्बू, मैं घर से भागी नहीं थी। मुझे मेरे एक मजाक की भारी कीमत चुकाना पड़ी है। वो फूट फूट कर रो रही थी। घर वाले तो उसका यकीन कर चुके थे मगर खानदान वाले उसे हनूज बुरा भला कह रहे थे। वो सोच भी नहीं सकती थी उसका एक मजाक उसकी जिंदगी यूं भी बर्बाद कर सकता है। उसकी शादी टूट चुकी थी और वो नहीं जानती थी कभी इस ट्रॉमा से बाहर निकल सकेगी या नहीं। उसकी बहन खुश थी मगर वो खाली हाथ रह गई थी। दूसरी तरफ हानिया को भी ये सोचकर झुरझुरी आ रही थी कि वक्त पर ओन सच सामने ला चुका था। अगर देर हो जाती तो वो अपनी जिद में गलत कदम उठा लेती, मगर अब फैसला कर चुकी थी कि हमेशा ओन पर एतबार करेगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।